welcome everyone to the brand new episode of today's Fun Facts brought to you by Fun Time, the party makers from the 1st of September 2020. Today's Fun Facts is basically based on the amazing true stories across the world that happened on every day in the pages of history. आज के दिन इतिहास के पन्नों में जो भी डॉक्यूमेंटेड है, आज के दिन में पृथ्वी में कहीं कहीं पे ऐसे कुछ घटना हुआ था जिसके बारे में आप सभी से मैं शेयर करूंगा हर दिन सोम से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे, एवरी नाइट एट 8 o'clock शार्प ऑन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो चलिए, आज के ये ब्रांड न्यू एपिसोड है और मैं ये सोचा कि अपने अपने शेड्यूल्स के अंदर में मंडे टू फ्राइडे सब कोई बिजी रहता है, तो मैं सोचा कि बाय द टाइम यू रिटर्न बैक होम आपके लिए 10 मिनट का एक छोटा सा शॉर्ट प्रेजेंटेशन मैं रखूं और आपसे शेयर करूं आज के दिन में भी, यानी कि 1 सितंबर में पृथ्वी के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, द पेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट हैपेंड एक्चुअली ऑन दिस डे 1st of September, coming up to the year beginning on the year 1985। शुरुआत एक ऐसे घटना से with the story of the ship of dreams, टाइटैनिक, जिसके बारे में आपने मूवी देखे हैं, जिसके बारे में आप पढ़े हैं, सुने हैं, और बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में सब कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। आज से केवल उसी साल यानी 1985 में आज के दिन टाइटैनिक विच ड्राउन्ड इन द ईयर 1912 अपने डूबने का 73 साल बाद, आफ्टर 73 years of its drowning at the North Atlantic Ocean, टाइटैनिक को आज के दिन में एक फ्रेंच अमेरिकन एक्सपीडिशन के द्वारा, जिनका लीड किया था एक जाने माने ओशनिस्ट, ओशनोग्राफर रॉबर्ट बैलर्ड, उन्होंने ये टीम का लीड किया था और अल्टीमेटली टाइटैनिक वाज फाउंड under the sea level of 13,000 feet below the sea on this particular day. And the Royal Mail ship Titanic was thought to be unsinkable. But on April 14th, 1912, during her maiden voyage, Titanic struck an iceberg in the North Atlantic. On that fateful day, the world lost the largest and most advanced passenger steamship of her time. Marine explorer Dr. Robert Ballard first located the wreckage in 1985. Nearly 20 years later, he returned with a team of researchers to map the wreckage and conduct scientific analyses of its deterioration. Remotely operated vehicles were used to conduct a look, don't touch mission, which is extremely important in respecting and protecting this memorial. Fitted with high-definition cameras, the ROVs were able to stay in one spot long enough to reveal subtle features never seen before. Here we see Captain Smith's cabin. The side of the cabin has deteriorated and fallen away, and we plainly see the bathtub, pipes, and faucets. This large hole is at the base of the ship's forward smokestack, which is ripped off as the ship sank to the bottom. The ship wreckage is now covered by what look like rusty icicles, called rusticles. These formations are actually communities of bacteria that slowly eat away at the ship's iron and give the shipwreck its melting appearance. A comparison of rusticle growth over time helps scientists to better understand Titanic's degradation as well as that of other metal shipwrecks. The story of Titanic's sinking and her ill-fated passengers have been famously told in films and books. But Titanic lives on at the bottom of the ocean as a maritime memorial and as a scientific laboratory. Today on the 1st September in the year 1939, करीब दिन को सुबह 4:45 पर, at around 4:45 a.m. in the morning, that the German troops has invaded Poland along its 1750-mile border with the German-controlled territory. बाद में Adolf Hitler told that it is not an attack, it is claimed to a massive invasion which was a defensive action. But French and Britain refused to
go by this claim made by Adolf Hitler. हिटलर ने बताया ये कोई अटैक नहीं है बट एक डिफेंसिव एक्शन है फ्रांस और ब्रिटेन के ऊपर जिसका नतीजा ये पोलैंड का अटैक है। और बाद में इट वाज आल्सो सेड दैट इसके तुरंत बाद यानी 1 सितंबर से 2 दिन बाद ऑन सितंबर 3 दे डिक्लेयर्ड वॉर, यानी फ्रांस और ब्रिटेन इस घटना के नतीजे पर दे डिक्लेयर्ड फाइनली द वॉर ऑन जर्मनी, जिसका नतीजा हुआ था इनिशिएशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ से शुरुआत होता है आज का दूसरा घटना का। चलते हैं तीसरे घटना पर। आज से करीब कुछ ऐसे ही 1998 में आज के दिन इंटरमोडल सरफेस ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी एक्ट बोल के एक एक्ट है जो 1991 में आया था बट उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1998 में। अब ये एक्ट क्या है मैं आपको बताऊं। ये एक्ट के तहत यूएस के जितने ट्रांसपोर्ट लाइट वेट ट्रक्स और उसके साथ साथ जितने भी गाड़ी है कार्स है, द कार्स एंड लाइट वेट ट्रक्स जो यूएस में चलेंगे, मूवमेंट होगा, दे हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड और उनके अंदर में एयर बैग्स लगाना पड़ेगा। ये इम्प्लीमेंट हुआ था कि फ्रंट सीट के सामने में आज के दिन में जो कोई भी गाड़ी के अंदर सेफ्टी के लिए दिया जाता है, हमारे कंट्री में भी ये यूएस में इम्प्लीमेंट हुआ था कि सब ऑल लाइट वेटेड ट्रक्स एंड कार्स शुड हैव एयर बैग्स इन फ्रंट ऑफ द सीट्स इन यूएस। चलते हैं और एक आखिरी घटना लेके। वैसे तो इतिहास के पन्ना उठा देंगे तो काफ़ी सारे ऐसे घटना निकलेगा बट और एक घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 1960 में खासकर एक घटना आज के दिन ऐसा हुआ जहाँ पे द ब्रिटिश एक शख्स है, मैं क्या बताऊँ, जिनका नाम है जॉर्ज फ्रांसिस ट्रेन। इन्होंने आज के दिन में इनॉग्रेटेड द बर्केनहेड tramways at a place known as Birkenhead. He was basically an American, but उन्होंने ये tramways आज के दिन में उन्होंने शुरुआत किया था, इनिशिएट किया था या इनॉग्रेट किया था आज के दिन, यानी 1 सितंबर को इन द ईयर 1960। तो ये था आज का यानी 1 सितंबर रिलेटेड ऐसे 4 घटना जो हिस्ट्री ऑफ द पेजेस में कहीं ना कहीं लिखित है, डॉक्यूमेंटेड है। ऐसे हर दिन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे घटनाएं जो इतिहास के पन्ने में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड है या किसी का इसके बारे में शायद आप कभी सोचे भी नहीं या इतना मौका भी नहीं मिला है कि इसके बारे में जानने का। तो सुनते रहिए हर दिन हर रात शाम को 8 बजे अमेजिंग फन फैक्ट्स विथ मी ऑन द चैनल, द यूट्यूब चैनल brought to you by Fun Time the Party Makers. Share and subscribe if you really like the amazing fun facts. मिलते हैं कल फिर